ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 14,000 سے زیادہ جبکہ شام میں 3,000 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری۔ فوری امداد کے لیے شامی حکومت اور اپوزیشن سیاسی اختلافات پس پش ڈالے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی گیئر پیڈرسن کا مطالبہ۔ انتظار کرنے اور مذاکرات کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب تک مذاکرات ہوں گے بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ شام میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر کی اپیل۔ وزیر اعظم کی ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے دل کھول کر احتیاط دینے کی اپیل۔ امدادی کارروائیوں کو منظم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں فنڈ ریزنگ کی ہدایت۔ ترکی اور شام کے لیے امدادی سامان کی ترجیحی بنیادوں پر ترسیل زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے یقینی بنائی جائے۔ محدود وسائل کے باوجود پاکستان امداد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا، وزیر اعظم۔ IMF کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے قوم کو جلد اچھی خبر سنائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سازش کرنے والے گروہ کا سربراہ عمران خان ہے۔ نواز شریف بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ عمران خان زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ بے گناہ ہوتا تو ویل چیئر پر بھی عدالت پیش ہو جاتا۔ عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر، لیکن جلسے کے لیے راولپنڈی پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ ملک کی معاشی تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ایبٹ آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب۔ ہر نئے پلستر کی رونمائی کے ساتھ عمران خان نیا جھوٹ اور نیا الزام لگاتا ہے۔ قوم میں نفرت، بد تہذیبی، تقسیم کا زہر گھولنے والا اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ ہارے ہوئے نالائق، نااہل، گھڑی چور، کرپ، بہروپیے کی کسی کو فکر نہیں۔ عمران خان اداروں کے خلاف جھوٹے بیانات سے دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ محمد نواز شریف نے اپنے خلاف ہونے والے کیسز کا دلیری سے سامنا کیا۔ عمران خان بھی میرٹ پر عدالت کے سامنے جواب دیں۔ عمران خان اس لیے کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو۔ ممتاز کشمیری رہنما محمد افضل گرو کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ کل جماعت یونٹ کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ شہید محمد افضل گرو کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے جھوٹے مقدمے میں 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی۔ ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں وقفے سے بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ زلزلے سے 32,000 کے قریب افراد زخمی ہیں جبکہ متاثرہ علاقوں میں 5,775 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سخت سردی امدادی کاموں میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اموات کی اصل تعداد سامنے آنے والے اعداد و شمار سے 8 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ترکی کے 10 متاثرہ صوبوں میں متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ برفباری اور موسم کی شدت بے گھر ہونے والوں کی بے بسی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ مواصلاتی ڈھانچے کی تباہی کی وجہ سے آغاز میں امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی سے اس صورتحال سے باہر نکلیں گے اور اپنے ہم وطنوں کو بے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پاکستان بھی اپنا حصہ مسلسل ڈال رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر زلزلے سے متاثرہ ممالک ترکی اور شام کے عوام کے لیے امدادی سامان کی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ پاکستان اپنے ترک بہن بھائیوں کی امداد میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ اسلام آباد میں ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے سکولز،
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में फंड रेजिंग की जाए। पाकिस्तानी अवाम ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए अशिया NDMA के कलेक्शन सेंटर्स पर जमा करवा सकते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्की जैसे अपने देरीना दोस्त के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में आला सतह कमेटी कायम की। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी, वज़ीर इत्तलात और नशियात, वज़ीर तालीम, वज़ीर मज़हबी अमूर, चेयरमैन NDMA, पाकिस्तान के तुर्की और शाम में सफ़ीर और मुआविन ख़ुसूसी तारीफ़ात में कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी का रोज़ाना की बुनियादों पर इजलास इमदादी सामान की तुर्की और शाम तरजीही बुनियादों पर तस्लीम को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि पाकिस्तान से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी रास्तों से इमदादी सामान भेजा जाए और NDMA हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के हर ज़िला में तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर्स बनाए। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबे जिंदा अफराद का 3 मकामात पर तयन कर लिया। मलबे तले दबे अफराद के रेस्क्यू के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। पाक फौज की इमदादी टीमें तुर्की के सूबा अदयान में रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। शदीद सर्द मौसम है, उसके बावजूद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। गुज़श्ता शब अदयान में -8 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी। तुर्क अवाम और वुरसा भी पाक फौज की खिदमत के मुतरिफ हैं। पाकिस्तान की शाम में हालिया तबाहकुन ज़लज़ले से होने वाले नुकसान से मुतल्लिक़ हर कोशिश जज़्बा मुसलमानी के साथ है। पाकिस्तान अपने बिरादर ममालिक की हर मुमकिन खिदमत और इमदाद के लिए पुरअज़्म है। जैसे एक बच्चे को जिंदा निकाल दिया है। जी हाँ जी, और इमदादी कारकुन ऐसा बता रहे हैं कि हेलन नामी बच्चे की सेहत अच्छी है और उसे तिब्बी यूनिट्स की निगरानी में रखा गया है। अदियामान सूबे में एक और तलाश और बचाव टीम ने रात एक ही खानदान के 4 अफराद को मलबे के नीचे से जिंदा पाया और उन्हें बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसीलिए कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। से सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालने का मुतालबा किया है। उनका ये कहना है कि ज़लज़ले से जो तबाही हुई है वो नाकाबिल तसव्वुर है। उनका ये कहना है कि तमाम मुतासरा इलाकों में लोगों को फौरी मदद और तेज़ तरीन रास्ते की अशद ज़रूरत है, लेकिन शाम पर अमरीकी और मगरबी पाबंदियाँ ज़लज़ले से मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुँचने से रोक रही हैं। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मुस्तफ़ा बिन अल मलीह ने ये अपील की है कि सियासत को एक तरफ रखें और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करें। वानी सदर इस्लामाबाद में श्रीलंका के सीनियर सिविल सर्वेंट्स के वक्त से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए आला तालीम, अकेडमी और तहकीक के शोबों में ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। श्रीलंका के 20 सीनियर सिविल सर्वेंट्स 2 हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान में मौजूद है। प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, अमन और तज़वीराती मुतालियात, अवामी पॉलिसी और कौमी क़यादत से मुतल्लिक है। सदर मुमलिकत ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को अपने सामने दरपेश चैलेंजेस से निपटने में मदद देने के लिए तेज़ रफ्तार फैसले करने के साथ साथ तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज करनी होगी। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा और इस शोबे की तरक्की के लिए फिक्री राहें इस्तेमाल करने के लिए बरवक्त फैसले करना होंगे। इख्तलाफात की खबरें हैं कि वो सारी हमेशा हम इख्तलाफात की खबरें बात करते हैं, हम आदत बन गई हमारी। सर आखिर रुकावट क्या है? इंशाल्लाह प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी, हर चीज सही चल रही है, थिंग्स आर ऑन ट्रैक। कब तक उम्मीद है कि आज मामला तय हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह भाई, बिल्कुल आज फाइनल राउंड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, जब इमरान खान और उसके हवारियों ने तरक्की को रोककर अवाम को महंगाई की दलदल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हज़ारा मोटरवे समेत मुल्क के सबसे बड़े मंसूबे नवाज शरीफ ने बनाए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल और विफाक में 4 साल हुकूमत की, करोड़ नौकरियों और बिलियन ट्री सुनामी समेत सब झूठे नारे। पाकिस्तान के जितने भी आज काबिले जिक्र मंसूबे हैं, चाहे वो एटमी धमाका हो या वो मोटरवेज हो या वो हज़ारा मोटरवे हो या वो अस्पताल हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, एक्सप्रेसवेज हो, बिजली के कारखाने हो, मेट्रो बस हो, ऑरेंज लाइन हो,
सी पैक हो, गवादर की बंदरगाह हो, हर मंसूबा उठा के देख लो, उसके नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। PTI हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क तबाही के धाने पर पहुंच गया। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। जो कहता था कि मैं पेशावर को लाहौर बना दूंगा, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। मेरा तो बहुत दिल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी नए हॉस्पिटल बने, खैबर पख्तूनख्वा में भी IT सेंटर्स बने, खैबर पख्तूनख्वा भी नई यूनिवर्सिटीज बने, सड़कें बने। जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था, वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा। ये कहाँ का इंसाफ है? और आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो देना पड़ेगा, और मुवाजना करना है तो 2022 से 2023 का मुवाजना नहीं होगा हजारा वालों, मुवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब के 10 साल और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल का मुवाजना होगा। मुआवजा करना है तो नवाज शरीफ के 4 साल और इमरान खान के 4 साल का मुआवजा, तो लोगों को लग पता जाएगा कि इस मुल्क की सूबे की बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ने सुरखरू किया और उनके मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो इल्जामात उन पर लगे वो झूठे। सिर्फ एतराफ़ जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो कि कौम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, जिसको कौम ने वोट देकर 2013 में भेजा, उसको क्यों इकामे पर निकाला? जरा कौम को जवाब दो। और कौन कौन इस साजिश में शामिल था जिसका सरगना इमरान खान था, कौम को बताओ, और बताना पड़ेगा। और अल्लाह ताला तो देखे ना, नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठे, उनके मुखालिफिन बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती, उसके मुखालिफिन गवाही दे रहे हैं, जज बोल उठे, उसके बदतरीन मुखालिफ बोल उठे, मीडिया बोल उठा कि हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाओ। इंशाअल्लाह ताला जो रह गए वो भी बोलेंगे कि नवाज शरीफ के साथ हमने ज्यादती की, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को अदालत जाने से पलस्तर नहीं, जराइम रोकते हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश करने वाले गिरोह का सरबराह इमरान खान है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती की गई। नुकसान किसका हुआ? जाती नुकसान नवाज शरीफ का हुआ, खानदानी नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो कौम और पाकिस्तान इसकी ज्यादतियों को भुगत रहे हैं। 4 साल आटे की कीमत 35 रुपए रही, चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए रही, घी की कीमत 140 रुपए रही, कीमतें नहीं बढ़ी। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, तो फिर किसको तकलीफ हुई? तो ये ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है, इस कौम के गरीब आवाम के साथ ज्यादा हुई है। क्या आपको अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है, आपके मुल्क में कोई तरक्की ला सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, अवाम का जम्मे गफी, जोश व खरोश दीदनी रहा। मरियम नवाज भी शरीक हुई। कन्वेंशन में इंजीनियर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम का जोश व जज्बा मरियम नवाज के दम से है। मरियम नवाज शरीफ के एक दलेर खातून है, शीरनी है। आप इसके बारे हमने देख लिया, उसके साथ काम करने का, और हमें भी हौसला मिल रहा था कि जब आपकी लीडरशिप में इस तरह कोई काम करता है तो नीचे वर्करों में भी जज्बा होता है। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, मरियम नवाज ने इमरान खान के झूठे बयानिए का डट कर मुकाबला किया और कौम के सामने हकीकत रख दी। हरिपुर की क़यादत हो, मानसेरा की, तुरगर की हो, बटकराम के मेरे दोस्त बैठे, पाकिस्तान के मेरे जंगजू साथी हैं, मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। झंडे लेके कायद की काल पे सड़कों पे खड़े हुए हैं, मैं इन वर्करों और इन लीडरों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। पीर साबिर शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकालेगी। मरियम बीबी के जिम्मे मियां नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा हालात के अंदर जो जिम्मेदारियां दी हैं, हमारी इकोनॉमी के हालात, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, दहशतगर्दी और कितने मसाइल हैं, जिन मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत क़यादत की जरूरत है।
सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हजारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून हजारा से तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। कल भी हजारा मुस्लिम लीग नवाज का था, आज भी मुस्लिम लीग नवाज का है। आइंदा आने वाले इलेक्शन भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी इंशाल्लाह। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म भी होगी और कामयाब भी होगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून सूबे की तरक्की में हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कन्वेंशन को जलसा गाह में तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि वजीर आज़म की हदायत के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कोई कमी नहीं। वजीर मुमलिकत ने यकीन दिलाया कि पेट्रोल पंप मालिकान को बेजा तंग नहीं किया जाएगा, अलबत्ता ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे। हम ये मेक श्योर करेंगे कि मुल्क के अंदर जो भी लोग जिस तरीका कार के जरिए भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या कोई और इंटेंशन है, वो मुल्क के पेट्रोल पंपों को ड्राई आउट कर रहे हैं और गरीब लोग के लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह ने कहा कि कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उसके साथ एसोसिएशन नहीं खड़ी होगी। वज़ीर मुमलिकत ने पेट्रोल की कमी का रोना रोने और महंगाई का ढोंग रचाने वालों को तंबीह की कि वो ऐसे इक़दाम से बाज रहे। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अवाम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे दो टोक उनको ये कह दिया है कि आज शाम से पहले वो तरीका कार तय कर लें जिसके जरिए जिसके जिम्मे जो भी पेट्रोल पंप हैं वहां पे पेट्रोल फराहम किया जाए, और अगर वो तरीका कार तय नहीं करेंगे वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि एक दिन में सरगोदा और फैसलाबाद में 7 पेट्रोल पंप सील और 7.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं, जबकि शोरकोट समेत मुख्तलिफ दही इलाकों में भी कायम गैर कानूनी स्टोरेज को सील कर दिया गया। को कागजात नामजदगी में छुपाने और झूठा बयान हलफी देने पर इमरान खान की नाअहली के केस के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान मुख्तलिफ बहानों से केस से भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि केस का फैसला मेरिट पर हो। अता तारट ने कहा कि इमरान खान इसलिए केस को लटकाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत हैं। अता तारट ने कहा कि इमरान खान तकनीकी बुनियादों पर राह फरार हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जवाब दें कि क्या उनका बयान हलफी झूठा है। मार्च तक मुलतवी करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरखास्त काबिल समाअत हुई तो मेरिट्स पर दलाइल सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागजात नामजदगी के साथ बयान हलफी में मालूमात छुपाने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ। जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब असेंबली तहरीर नहीं की, लिहाजा नए इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख ना भी दी जाए तब भी इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तहम इलेक्शन की तारीख सिर्फ गवर्नर ही मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।